Hello class, how are you all? I hope you all are very good at your home. I will teach class 7th English. So class 7th we were on our third chapter, the wheat is cheaper first, okay? तो कैसे जो है रवि, अशोक और डेविड जो दोस्त होते हैं, तो रवि स्टोरी सुना रहा होता है एक मर्चेंट की जो बहुत ही ग्रीडी होता है। तो जो है मर्चेंट को जो मर्चेंट है वो कहता है कि मैं बहुत ही जगह पहले घुमा हूँ, मुझे हमेशा से कम पहले मैं अकेला घूमता था बट अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो अब मुझे कंपनी की ज़रूरत पड़ती है। द फार्मर सेड थैंक यू, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, आई बिलीव यू आर a stranger. No, the merchant said, I am a merchant and I have been here before. I travel to many places, but how can I be a good companion to you? The farmer asked. I am only a simple villager and you have seen a lot to this world, but perhaps it will be all right if you do all the talking. I shall listen to what you say. This is not fair. I am not do all the talking. I have an idea each one of us can tell the wisest possible tale. If I cast doubt on your story, I will pay you 100 rupee. But if you cast doubt on mine, you will have to pay me an equal sum of money. How do you like the idea? Fine, said the farmer. अब मर्चेंट फार्मर से बात करता है, वो कहता है कि हम अजनबी हैं तो अब एक काम करते हैं, तुम बोलते रहना मैं सुनूंगा और तो क्या, ऐसे करके वो बहकाता है अपनी बातों में। तो उससे फार्मर कहता है कि एक काम करते हैं अपन दोनों इक्वल बोलेंगे और जिसको भी डाउट हुआ वो उससे क्वेश्चन पूछेगा और वो मान जाते हैं कि पैसे की बारी होगी। So, as it a bargain, the merchant said, Yes, it is, said the farmer. So now it's begin. As you are the wiser of us two, you must begin. The merchant began this story. As I was going along this road one day, I saw a merchant with a long train of camels. There were 101 camels, each of them was loaded with large quantities of grain. वो क्या कहता है कि मैं एक मर्चेंट था और मैं एक समय जो है देखा कि एक व्यक्ति जो है बहुत सारी लंबी कैमल्स के साथ बहुत सारा धान लगाकर जा रहा है। फार्मर सेड आई हैव सीन ट्रेन ऑफ कैमल्स माई सेल्फ एंड देर आर वेरी ऑफ्टन लोडेड विथ वेरी हैवी गुड्स। वो कहता है कि मैंने भी देखा और यहाँ से जाती ही रहती है। मर्चेंट सेड इट ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर विथ रोप नोज टू टेल। इट वॉज अ लार्ज ट्रेन अबाउट हाफ अ मील। Good, it must have been a fight sight. And then, after the asked farmer, merchant continued. And then a kite flew down on the first camel and carried him off. But all the camels were tied together, all the camels were carried up with it. What do you say to do? Farmer said, It must have been a very strong kite. Do you doubt it? Asked the merchant. No, why should I ask? Said the farmer promptly. क्या होता है कि वो कहता है कि वो जो कैमल्स थे उनकी नाक से लेकर पैर तक सभी की बंधी हुई थी एक ही डोरी से और सभी एक डोरी से बंधे हुए थे। इस बीच क्या होता है, वो लाइन बहुत एक आधी किलोमीटर की लाइन थी। तो एक काइट आती, एक पतंग आती है जो कि पहले वाले कैमल के उड़ा कर लेकर चली जाती है और उसके साथ साथ बाकी कैमल्स भी उड़ जाते हैं। तो वो पूछता है तो वो मतलब वो काइट इतनी स्ट्रॉन्ग थी। तो मर्चेंट कहता है क्या तुम्हें कोई डाउट है? तो कहता है नो, वाई शुड आई, नहीं मुझे कोई डाउट नहीं, मुझे कोई डाउट होगा। नाउ द मर्चेंट वॉज डिसअपॉइंटेड बट ही डिसाइडेड टू मेक अनदर अटेम्प्ट टू गेट 100 rupee. He continued. A prince was sitting in her garden and a maid was combing her hair. The princess happened to look up at the sky just then. The kite I spoke about was flying in the sky right over his head. The first king camel gave the bird such a kick that it let got him, and train of camels fell right into the prince's left eye. Poor girl, there were 101 animal, and they must have given her a lot of pain. And then the merchant did not know what to say, but he made a last attempt. Then the princess started crying with pain. Her maid stopped combing her hairs. She carefully lifted the princess's eyelid and removed all the camels one after other from the eyes and put them into her pocket.
That was a good mat, said the farmer, and then the merchant could not think of anything more. So he said, "This is all and is the end of my story. Now it's your turn." मर्चेंट ने क्या कहा कि अगर जिसकी भी स्टोरी अच्छी नहीं लगेगी वो पैसे देगा। ठीक है, तो फार्मर उस चीज़ के लिए एग्री हो गया। अब मर्चेंट क्या मन भर कहानियाँ बना रहा है कुछ भी, कि 100 कैमल्स ऐसे थे, ताकि वो कुछ क्वेश्चन पूछे और वो हार जाए। अब क्या हुआ, तो वो कहता है कि 100 कैमल्स थे, तो वो उड़कर जो है उड़ जाते हैं काइट के साथ। तो एक प्रिंसेस वहाँ बैठी होती है और उसकी मेड उसके बाल नोच रही होती है। तो वो प्रिंसेस देखती है कि ऊपर आसमान में जो किंग काइट जो है कैमल्स को लेकर उड़ रही है, तो काइट्स नीचे गिरती है और कैमल सारी उसकी लेफ्ट आँख में गिर जाते हैं और वो दर्द के मारे रोने लगती है। तो उसकी मेड इतनी अच्छी होती है कि सारे कैमल्स निकाल के उसकी पॉकेट में रख देती है और इसी तरह जो स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और जो है मर्चेंट को पैसे नहीं मिल पाते, क्योंकि फार्मर भी बहुत समझदार था। ओके, सो हियर इज़ द चैप्टर एंड क्लास। थैंक यू सो मच।